Friends, good morning everyone. In previous lecture, studied about index number. So in this chapter, explain the index number. Again revise the shortly. So what is meant by index number? An index number is a device to measure changes in economic variable or group of a variable over a period of a time. इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड इकोनॉमिकली ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, मीन चेंजेस के मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. सेकंड वन, डेफिनेशंस ऑफ द इंडेक्स नंबर. फर्स्ट वन, स्पाइगल. An index number is a statistical measure designed to show changes in a variable or a group related variable with reference to time, geographical location and other characteristics such as income, profession, etc. It is clear that Spiegel says index number is a statistical measure use of the measure changes in economic variable. Just for example, professions, income, for example, use of the different geographical location, time, etc. Second one definition, Croxton and Count. Index number are devices for measuring differences in the magnitude of a group of related variable. It is clear that Croxton and Cowden index number means measuring the differences. So which types of the differences? Group of the related variables differences. Just for examples, agriculture productions and every family use of the necessary commodity. Just for example, wheat, rice, sugar, etc. ठीक है, जो हमारे नेसेसरी कमोडिटी का जो ग्रुप बनेगा उसका जब हम लोग वहाँ पर इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो उसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ वेरिएबल इंडेक्स नंबर. नेक्स्ट वंस हम लोगों ने देखा था फीचर्स इन शॉर्टली. इंडेक्स नंबर्स मीन्स स्टैटिस्टिकल डिवाइस. इंडेक्स नंबर मीन्स स्पेशलाइज एवरेज. इंडेक्स नंबर्स मेजर द वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स. Fourth one, index number is computed from single variable, a group of variable. Index numbers prepare the current year, explain, measure the base year, and base year is assume that 100. And last one था, index number is also known as the economical parameters. ठीक है. So today we are going to study about types of index number. Before, in your textbook given bracket you should know. So every student know this information because this information is a importance for the index number study. So explain the you should know means terminologies used in an index number. So two types of the terminology. First is the base year and second is the current year. So what is meant by base year? The year with respect to which कंपैरिजन आर मेड इन द बेस ईयर. इट इज़ डिनोट बाय द सफिक्स 0. बेस ईयर्स का मतलब क्या है? वहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है किसके साथ में? करंट ईयर के साथ में. सो बेस ईयर का सफिक्स क्या है? 0 है. ठीक है. उसके साथ में करंट ईयर, करंट ईयर्स की जानकारी देखते हैं हम लोग. द ईयर फॉर विच कंपैरिजन्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इज द करंट पीरियड. इट इज़ डिनोटेड बाय द सफिक्स 1. अगेन सेम दैट करंट ईयर मीन्स द ईयर विच कंपैरिजन करना है और उस टाइम में उसका मोड जो करंट पीरियड रहेगा उसे सफिक्स क्या रहेगा? सो सफिक्स उसका 1 रहेगा. नीचे आपको उसका नोटेशंस दिया है. नोटेशंस में आप लोग देखो P0 P1. P0 का फुल फॉर्म है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द बेस ईयर. प्राइस ऑफ द कमोडिटी बेस ईयर. वहाँ पर बेस ईयर के कमोडिटी की जो प्राइस रहेगी उसे P0 कहा जाता है. P0 का मतलब क्या है? बेस ईयर्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी. उसके साथ नीचे दिया है P1. P1 मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर. करंट ईयर जब भी हम लोग इंडेक्स नंबर को मेजर करते हैं सो बेस ईयर एंड करंट ईयर से ही मेजर करते हैं. सो जो करंट ईयर्स का मेजरमेंट रहेगी उसे कहा जाता है P1. ठीक है. नीचे आपको क्वांटिटी के बारे में दिया है. उसमें भी सेम है Q0 एंड Q1. Q0 का मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम और परचेस इन द बेस ईयर. क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर्स का मतलब है Q0 एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी करंट ईयर्स का मतलब है Q1. तो याद रहेगा क्वांटिटी बेस ईयर Q0, क्वांटिटी करंट ईयर Q1, प्राइस वहाँ पर बेस ईयर्स P0 एंड प्राइस करंट ईयर P1.
तो इस तरीके से नोटेशंस याद रखना है एंड देन कंपैरिजंस ऑफ द बेस ईयर्स करंट ईयर. सो दिस इंफॉर्मेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इंडेक्स नंबर. So next one, types of index numbers. So there are 4 types of the index number. So first one, price index number. Second, quantity index number. Third one, value index number. And fourth one, special purpose index number. One by one, explain the price index number. So first one, price index number. What is meant by price index number? Price index number means it measures the general changes in the price of goods. Compare the level of prices between two different time period. It measures the general changes in price of goods. जो general changes price में होते हैं उसे measure करना है. और comparison किसके साथ में रहेगा? So वहाँ पर two different time period. जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल्स हम लोग देखते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 या हम लोग करंट ईयर लिया है, उसके साथ में बेस ईयर्स में 1995 बेस ईयर लिया है. तो हमें क्या करना है? प्राइस इंडेक्स निकालना है. एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल लेते हैं. सो ग्रुप ऑफ वेरिएबल से 2000 का जो इंडेक्स है वो इंडेक्स कितना है? 125. तो बेस ईयर्स का हम लोग कितना एज्यूम करते हैं? 100 एज्यूम करते हैं. तो उस हिसाब से वहाँ पर हमें नेट चेंजेस कितना दिखेगा? 25% इज़ द नेट चेंजेस कंपैरिजन्स बेस ईयर एंड करंट ईयर. ठीक है. जो 1995 में जब हमारा 100 वहाँ पर एज्यूम है और अभी 2000 में कितना है? सो वहाँ पर लगभग 125 है. तो कितना नेट चेंजेस दिख रहा है? 125. तो इस तरीके से 2 डिफरेंट टाइम पीरियड जो अभी हम लोगों ने देखा 1995 एंड 2000, ये हमारे 2 डिफरेंट टाइम पीरियड थे. उसके साथ में कमोडिटीज़ भी देखिए, मीन्स नेसेसरी कमोडिटी जिसमें से ग्रुप आता है. तो इस तरीके से प्राइस इंडेक्स को मेजर किया जाता है. उसमें कुछ क्लासिफिकेशंस भी आता है. जैसे फॉर एग्जांपल होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकंड वन रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर, या फिर थर्ड वन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. ठीक है. सो आपको होलसेल प्राइस पता है कमोडिटी की. सो होलसेल प्राइस में जो परचेसिंग कमोडिटी की पावर होती है उसका इंडेक्स निकाला जाता है. रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर निकाला जाता है जो हम लोग कस्टमर्स वहाँ पर रिटेल मतलब शॉप से परचेस करते हैं. या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स कॉस्ट ऑफ लिविंग में जैसे वहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो इंडेक्स आता है, या फिर हम लोग लेबर्स का इंडेक्स देखेंगे, मतलब वो अपने जीने के लिए कितना वहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं या पैसा खर्च कर रहे हैं. तो इस तरीके से प्राइस इंडेक्स में होलसेल, रिटेल एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी मौजूद होते हैं. ठीक है. सेकंड वन पॉइंट है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द वॉल्यूम इंडेक्स नंबर. ये अच्छे से याद रखो. क्वांटिटी का मतलब क्या है? वॉल्यूम इंडेक्स नंबर. ये नाम भूलना नहीं है. इट मीन्स changes the level of output or physical volume of the production in the economy. Major changes. So which types of the changes? Which types of the measures? So level of the output. जो हमारा प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, जो सप्लाई है, या फिर जो टोटली स्टॉक है, सो वो जो लेवल ऑफ आउटपुट है उसे मेजर करना है. या फिर उसे ही हम लोग अदर वर्ड में बता सकते हैं फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शंस. जो भी वहाँ पर भौतिक वॉल्यूम्स रहेगा, जो क्वांटिटीज़ रहेगी प्रोडक्शन से इन द इकोनॉमी, सो दिस क्वांटिटीज़ मेजर चेंजेस इट इज़ इंक्लूड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. प्राइस की तरह सेम होगा. जैसे हम लोग प्राइस को एक्सप्लेन करेंगे मीन्स वैसे ही वहाँ पर यहाँ पे क्वांटिटी को एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ पर उस ईयर में कितनी क्वांटिटी हुई थी. कोई भी एक हम लोग पर्टिकुलर कमोडिटी ले रहे हैं, सो आगे करंट ईयर में कितनी क्वांटिटी हो गई है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, और इसका जब इंडेक्स नंबर मेजर किया जाता है तो उसे कहा जाता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. उसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग बता सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस एक्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम. सो उस साल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस कितने क्वांटिटी में था. ठीक है ना. जो भी हम लोग बेस ईयर एंड करंट ईयर्स का कंपैरिजन लेंगे. तो इस तरीके से वहाँ पर क्वांटिटी मीन्स वहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मेजर किया जाता है.
थर्ड वन पॉइंट है वैल्यू इंडेक्स नंबर. So what is meant by value index number? The value of a commodity is the product of its price and quantity. It means P into Q. Again, it is very easy, very clear that first one point and second one point means price index and quantity index. It is both are the collected of the value index number. किसी भी commodity का जो value रहेगा, जो हम लोग वैल्यू इंडेक्स निकालेंगे, तो वैल्यू इंडेक्स कैसे निकालेंगे? सो किसी भी कमोडिटी की प्राइस कितनी है और क्वांटिटी कितनी है. जस्ट फॉर एग्जांपल से कोई सेलर्स रहेगा, उसकी 50 वहाँ पर क्वांटिटी है और प्राइस है 25 रुपीज़. सो उसे इंटू करेंगे और वहाँ पर मनी निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वैल्यू इंडेक्स नंबर. तो वैल्यू इंडेक्स नंबर में एक्चुअली क्या मेजर करना है? सो मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल्स इन टर्म ऑफ रुपीज़. मीन्स मेजर द वैल्यू टर्म ऑफ रुपीज़. हमें जो वैल्यू मेजर करना है वो किस में मेजर करना है? सो रुपीज़ में मेजर करना है. जस्ट फॉर एग्जांपल 20 वहाँ पर 20 लाख रुपीज़, 500 लाख रुपीज़ एक्सेट्रा. सो दिस प्रोडक्शंस मीन्स इंडिकेट द वैल्यू इंडेक्स नंबर. उसके साथ में हम लोग देख सकते हैं इट इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव इंडेक्स मीन्स कंबाइन बोथ चेंजेस इन प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी. इसमें जो आपके पहले दो टाइप्स थे, so two types are included in the value index number. Means first one is the price index and quantity index. So both are included in the value index and simply value index measure the money. तो सिंपल तरीके से याद रखो वैल्यू इंडेक्स पैसे में मेजर किया जाता है. अगेन हमारे सेम दो करंट बेस ईयर्स हैं और वहाँ पर उसमें प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्लूड रहती है. ठीक है. उसके साथ वहाँ पर अभी हम लोग फोर्थ वन टाइप्स देखेंगे. जो लास्ट वन है स्पेशल पर्पज़ इंडेक्स नंबर. सो स्पेशल पर्पज़ इंडेक्स नंबर इट मीन्स इट रेफर्स कंस्ट्रक्टेड विथ सम स्पेसिफिक पर्पज़. दिस इंडेक्स नंबर आर explain. This index number actually indicate express from the special purpose, specific purpose. So which example is the specific purpose? For example, changes in the export and import. तो एक स्पेशल है जो हमारा स्पेशल पर्पज़ में एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट आता है. सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, ये जब हम लोग एक्चुअली इंडेक्स में निकालेंगे तो उसे स्पेशल पर्पज़ इंडेक्स कहा जाता है. उसके साथ में और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं. सो वहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, जो हमारे श्रमिक हैं उनकी उत्पादन क्षमता मीन्स उनकी एक्चुअल प्रोडक्शंस कैपेसिटी कितनी है उसका इंडेक्स हम लोग निकाल सकते हैं. या फिर उसके साथ में शेयर्स मार्केट में शेयर्स प्राइस इंडेक्स, जो हमारा स्टॉक मार्केट है, तो इस तरीके से शेयर्स प्राइस इंडेक्स रहेगा, लेबर प्रोडक्टिविटी रहेगी, या फिर वहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहेगा. तो इस तरीके से स्पेशल पर्पज़ इंडेक्स नंबर वहाँ पर एक्चुअली ये टाइप्स ऑफ इंडेक्स में मीन्स स्पेशल पर्पज़ में आते हैं. ठीक है. मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और एक बार वहाँ पर फिर से देखो, प्राइस इंडेक्स का मतलब है वहाँ पर जो प्राइस है मीन्स एक कमोडिटी की दो अलग अलग वहाँ पर बेस एंड करंट ईयर में कितनी प्राइस थी उसका चेंजेस हम लोग जो मेजर करते हैं उसे प्राइस इंडेक्स कहा जाता है. क्वांटिटी का मतलब है बेस ईयर एंड करंट ईयर में जो भी वहाँ पर हम लोग प्रोडक्शंस ले रहे हैं, एग्री का रहेगा, इंडस्ट्री का रहेगा, सर्विस का रहेगा. सो एक्चुअली वो क्वांटिटी में कितना चेंजेस हो गए हैं वो दिखाते हैं. या फिर थर्ड वन वैल्यू इंडेक्स में एक्चुअली पैसे में कितना चेंजेस हो गया. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइस एंड क्वांटिटी इंडेक्स इंक्लूड द वैल्यू इंडेक्स नंबर. और लास्ट वन देखा था स्पेशल पर्पज़ इंडेक्स नंबर मीन्स स्पेशली वहाँ पर यूज इंडेक्स नंबर. इसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखे थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, शेयर्स मार्केट एक्सेट्रा. ठीक है. तो मुझे लगता है यहाँ तक का पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा. पढ़ाई जारी रखो. थैंक यू वेरी मच.